بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سپوفٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں شاہد الحق۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے بہت ہی ٹاپ لیجنڈز میں سے ہاکی کے طاہر زمان صاحب۔ طاہر زمان اولمپئن ہیں، ورلڈ کپ کے گولڈ میڈلسٹ ہیں، اولمپک میں برونز میڈل بارسلونا میں لے چکے ہوئے اور پاکستان کی کپتانی بھی کر چکی۔ لیکن طاہر بھائی کا سب سے بڑا جو اس وقت لارل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ایز این ایجوکیٹر ٹرینر جو ہے وہ ایف آئی ایچ اکیڈمی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ایف آئی ایچ ایلیٹ لیول، ٹاپ لیول ہوتا ہے ایف آئی ایچ کا، اس کے کوچ ہیں، دیٹ از لیول 6۔ اور ہم لوگ آج جو بات کرنے جائیں گے طاہر بھائی کے ساتھ، نہ صرف ہم لوگ کوچنگ کیریئر اور کوچنگ سے ریلیٹڈ بات کریں گے، بلکہ ڈسائڈ دس ان کی یادوں کو بھی تھوڑا سا دہرائیں گے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ان کی قیمتی رائے لیں گے آج کل کی سچویشن کے مطابق، جو ہاکی میں آج کل سچویشن۔ السلام علیکم طاہر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شاہد بھائی، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ دس از گریٹ۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ابھی تک ایز اٹ از ینگ نظر آنے میں، اور آپ یقین جانیے گا کہ میری آپ سے بہت پرانی ملاقات ہے، لیکن مجھے بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو شاہد بھائی۔ جی طاہر بھائی، انشاءاللہ یہ پاکستان کی ہاکی ایک دفعہ پھر آپ کے زمانے میں جا چکی ہوئی ہے، کم از کم اگر اس کی ہائپ کو دیکھا جائے۔ بچے بڑے طاہر بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا کیریئر بہت خوبصورت ہے، ہم لوگوں نے تو انجوائے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ورلڈ کپ کا جیتنا وہ پاکستان کے لیے 94 میں اور 92 بارسلونا والا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور واقعات ہیں، لیکن بیسٹ ترین آپ کی لائف کا کیا ہے؟ دیکھیں رزلٹ کے پروسپیکٹو سے دیکھیں تو شاہد بھائی 94 ورلڈ کپ کا جو گولڈ میڈل ہے وہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اور انفرگیٹیبل ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس سے بھی زیادہ جو چیز مجھے فیسینیٹ کرتی ہے، ہم انڈیا میں جو 89 میں ایشیا کپ جیتے تھے، انڈیا نیو دہلی میں شیوا جی اسٹیڈیم میں، اور انڈیا کو ہم نے فائنل میں ہرایا تھا۔ بڑی ٹائٹ سچویشن تھی، اور میرا خیال ہے کہ جب لوگ کنیکٹ ہوں گے آپ کے اس انٹرویو کے توسط سے، اس کو سنیں گے، تو بہت سارے میرے ساتھی جو میرے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو ان کی ساری وہ یادیں تازہ ہو جائیں گی کہ کتنا پریشر تھا ہم لوگوں پہ وہ میچ کھیلتے ہوئے انڈیا میں، اس کے باوجود ہم نے وہ جیتا الحمدللہ۔ اور پتہ نہیں، کہہ سکتے ہیں کہ روایتی حریف ہونے کی وجہ سے ایک بڑی اسپیشل اور اہم سی خوشی ہوتی ہے جب انڈیا پاکستان آپس میں کھیلتے ہیں اور کوئی بھی ایک دوسرے کو زیر کرتا ہے، تو ہمارے لیے بھی وہ بڑا ہی خاص موقع تھا جب ہم نے وہ ایشیا کپ جیتا فائنل میں۔ لیکن ابو آل سب دیکھیں تو جو بڑے ٹائٹلز کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو 94 کا جو ورلڈ کپ سڈنی آسٹریلیا میں ہم جیتے تھے وہ سب سے زیادہ میموریبل ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ میری ایک بڑی اسپیشل کنیکشن ہے اس 94 ورلڈ کپ کے ساتھ۔ ورلڈ کپ کے دوران پہلا میچ تھا 23 نومبر، آئی تھنک دیٹ واز اگینسٹ ارجنٹینا، کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے جب یہ بہت ہی افسوسناک خبر ملی، وہاں پہ میرے لیے سارے آپشن تھے کہ میں واپس آ جاؤں ملک میں۔ میری مینجمنٹ نے، مرحوم شی جونیئر صاحب نے، کیپٹن شہباز احمد سینئر صاحب نے، سب نے، میرا مطلب دوستوں نے کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ۔ ظاہر ہے اتنا بڑا سانیہ تھا، لیکن سم ہاؤ دی ادر مجھے نہیں پتا کہ کیوں میں نے یہ فیصلہ کیا ایک فون کال کے بعد، اپنے گھر پہ اپنی والدہ سے رابطہ کرنے کے بعد، لیکن میں رکا اور کھیلا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جو بیسٹ پاسبل پرفارمنس دے سکتا تھا، کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا اپنے ملک کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے، وہ میں نے کوشش کی، اور ہم ورلڈ کپ جیتے الحمدللہ۔ سو ورلڈ کپ میرے لیے بڑا اسپیشل ہے 94 کا۔ بالکل، یہ پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آپ لوگوں کی وساطت سے یہ خوشی قوم کو ملی۔ طاہر بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایز اے کیپٹن بھی پاکستان ٹیم کو 98 میں سرو کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ایز اے پاکستان ٹیم کے ساتھ کوچ بھی رہے ہیں۔ اور اگر ہم کوچنگ ہی کی بات کرنے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کی جو انٹرنیشنلی ٹریننگ کی اچیومنٹس ہیں
वो थोड़ा सा आप बताएंगे कि इस टाइम पे आप इस कोचिंग वाली साइड पे आए कैसे और ये कैरियर कैसा है? बड़ा ही शानदार सफर रहा है अभी तक। मैं जब खेल रहा था पाकिस्तान टीम में, और फिर उसके बाद जब प्रोफेशनल लीग हॉलैंड में खेल रहा था, तो उसी वक्त मैंने ये कह लें कि फैसला कर लिया था, और मुझे पता था कि मैंने हॉकी में ही अपने आने वाले अपना आने वाला वक्त जो है मुस्तकबिल में, वो मैंने हॉकी में ही रहते हुए गुजारना है। तो मैं आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट हॉकी कोचिंग। तो मैंने वहाँ पे लीग मैचेस के दौरान ही कोचिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। फिर हॉलैंड में मैं जिस क्लब के लिए खेलता था, उनका जो क्लब का सदर था और डायरेक्टर कोचेस था, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो ख्वाहिश कर रहे हैं इस चीज़ के कि आप उनके साथ ट्रेनिंग सेशंस वगैरह करो। तो फिर वहाँ से मैंने उनके साथ ट्रेनिंग सेशन शुरू कर दिए। फिर उन्होंने मुझे ये भी मशवरा दिया, अगर तुम में कोचिंग स्किल्स हैं, इसको कंटिन्यू करो, इसको एज ए प्रोफेशन ज्वाइन करो। और सबसे पहले इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन मेरे जो आप कह लें कि सही मानों में मुझे एज ए प्लेयर पॉलिश और शाइन करने वाले कोच थे तैयब इकराम चौधरी साहब, जो इस वक्त इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर भी हैं। मेरी जो इब्तदाई ट्रेनिंग है सारी वो गोजरा में उस्ताद मोहम्मद असलम रोडा मरहूम ने की, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैंने बेसिक हॉकी सारी उनसे सीखी। फिर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की स्कॉलरशिप की बेस के ऊपर टैलेंट हंट स्कीम में सिलेक्ट होकर लाहौर आ गया, तो फिर उस वहां से सारी कोचिंग जो है मेरी तैयब इकराम चौधरी साहब ने की। उन्होंने भी मुझे यही कह दिया था कि तुम्हारा आगे का जो फ्यूचर है वो मैं कोचिंग में देख रहा हूँ, तो इसको कंटिन्यू करो। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने उनकी गाइडेंस में ही, तैयब इकराम चौधरी साहब की गाइडेंस में ही अपने कोर्सेज को कह लें कि कोर्सेज में पार्टिसिपेट किया। एफआईएच कोच के लिए, एफआईएच हाई परफॉर्मेंस कोच के लिए, एफआईएच सीनियर कोच के लिए। मैं रुका नहीं कहीं भी आज तक। जब से मैं हॉकी खेल रहा हूँ, मैं हॉकी से अलहदा नहीं हुआ। मैं पाकिस्तान में होता हूँ, फारग होता हूँ, गोजरा में अपनी एकेडमी शुरू कर दी हॉकी में रहा, डिपार्टमेंट में नेशनल बैंक की कोचिंग में इन्वॉल्व रहा। जब मौका मिला पाकिस्तान की कोचिंग में इन्वॉल्व रहा। जब पाकिस्तान में कोचिंग नहीं कर रहा था तो ब्रॉड डेवलपमेंट कंट्रीज में जो भी एफआईएच के प्लेटफॉर्म से असाइनमेंट्स मिलती थी उनमें बिजी रहा। आज तक मैं हॉकी में ही बिजी हूँ और हॉकी में ही सर्व कर रहा हूँ, क्योंकि somehow the other हॉकी जो है वो मेरा पैशन है। बिल्कुल जबरदस्त आपका कैरियर है, स्पेशली कोचिंग में। ताहिर भाई, कोचिंग साइंसेस जो है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो इत्तेफाक से हमारे मुल्क में थोड़ा सा इस पे इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मेरे ख्याल से अगर हम लोग खिलाड़ी तो चले, इंटरनेशनली हमारे कई खेल रहे हैं प्रो में, लेकिन कोचेस भी आप पाकिस्तानी आना शुरू हो गए हुए हैं। शायद आप लोगों की ही ये मेहनत है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पाकिस्तानी कोचेस भी काफी सर्व कर रहे हैं। ताहिर भाई, इस कैरियर के मुतालिक बताएंगे आने वाले बच्चों को कि जरूरी तो नहीं है कि उन 15 में ये भी सिलेक्ट होंगे, और बहुत सारे लोग जो है ना अपना कैरियर छोड़ जाते हैं। तो ये कोचिंग कैरियर कैसे अडॉप्ट किया जाए, इसमें कितना टाइम लगता है और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? आपने बिल्कुल राइटली मेंशन किया शायद भाई। बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया कि मैंने खेलने के दौरान ही कोचिंग शुरू कर दी थी। अब हमारे सिखाए हुए बच्चे जो अभी हॉकी भी खेल रहे हैं, उन्होंने भी ऑलरेडी जो कोचिंग कोर्सेज हैं उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया हुआ है, और वो कोर्सेज जो हैं अटेंड कर रहे हैं एफआईएच के प्लेटफॉर्म से, एशियन हॉकी फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा जबरदस्त प्रोफेशन है कोचिंग का, और इसमें थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है हमारे लोकल कोचेस को और हमारे बच्चों को जो सीनियर प्लेयर्स हैं, क्योंकि हर किस्म का नॉलेज हॉकी के मतलब उनके पास बेसिक होता है, और सिर्फ उसको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, उस नॉलेज को सही तरीके से कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करना है, इन चीजों को सीखना, वो एक प्रोफेशनल कोच बन सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी कॉम्पिटेंस को प्रूव करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप ये जो इंटरनेशनल इंटरेक्शन की लैंग्वेज है इंग्लिश, इसको सीखें, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं, थोड़ा सा कंप्यूटर का इस्तेमाल सीखें। ये चीजें आपकी सहूलत के लिए हैं। मैं यहाँ पे इस बात का भी थोड़ा खुलासा करना चाहूंगा शायद भाई। हमारे पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे जो सीनियर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शुरू में हमें इस चीज के लिए ताना भी देते रहे। शायद उस वक्त प्रॉपर समझ नहीं थी
کہ یہ कंप्यूटर कोचेस, ये डरांगे बनाने वाले कोचेस आ गए हैं, ऐसे कैसे हॉकी सिखाई जा सकती है, कल भी हॉकी वही थी, आज भी यही है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हॉकी बदल गई है। हाँ, वो जो बात कर रहे हैं कि हॉकी वही है, बेसिक्स वही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त में जिद्दत आई है, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हुई है, ये जी जनरेशन का दौर आ गया है, वैसे वैसे वक्त के साथ साथ चीजों को साइंटिफिक तौर से करने के तौर तरीके बदल गए हैं। और ये सारे जो हैं, ये टूल्स हैं, लैपटॉप हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो, ये सारे टूल्स हैं आपका थोड़े वक्त में ज्यादा इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए ये सीखना पड़ता है। वरना आपने अपना दिमाग ही इस्तेमाल करना है, दिमाग से ही कोचिंग करनी है और अपनी स्किल के हिसाब से ही करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन चीजों को सीखने से आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अपने आप को वेल इक्विप्ड समझते हैं, और उससे आपकी कोचिंग में निखार आ जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे यंगस्टर्स को, हमारे सीनियर प्लेयर्स को, सबको सीखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फुकदान है, इस फुकदान को हमें दूर करना चाहिए। हमें इतनी एबिलिटी है कि हम अगर टाइम दें, प्रॉपर कोचिंग पाथवे को फॉलो करें, तो हम अपने कोच ना सिर्फ मुल्क में बच्चों को हॉकी सिखाने के लिए बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं उन कोचेस की। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ताहिर भाई बड़े अच्छे तरीके से इसको डिटेल से बताया। इसमें तकरीबन डिफरेंट लेवल्स जो हैं, इसमें कितना कितना टाइम है, और क्या इसमें कोई इंटर्नशिप लाजमी है, या एक कोच बन गया तो उसने खुद ही अपनी जॉब्स को तलाश करना है, या क्या कहाँ अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं? दोनों चीजें हैं शायद भाई इसमें। आप खुद से अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं जब हम कोर्सेज करवाते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और एशियन हॉकी फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से, तो फिर उसमें बाकायदा उनका पाथवे बनाते हैं, उनको गाइड करते हैं कि ये लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 FIH अकेडमी, दे आर कोलैबोरेटेड विद एशियन हॉकी फेडरेशन। और लेवल 1 करने के बाद उसमें कौन कौन से मेन कंटेंट्स होंगे, मैनुअल जो आपने उसको फॉलो करना है, और आप किस लेवल की कोचिंग कर सकते हैं। फिर इसी तरह लेवल 2 करने के बाद आप किस लेवल की और कितना वक्त दरकार चाहिए। बाज़ दफा क्या होता है, अगर कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, जैसे मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं फर्ज कर लें एज ए इंटरनेशनल एक्सपर्ट, मैं किसी कोच को देखता हूँ और उसको मैं असेस करता हूँ कि इसने अभी तक अपना पाथवे शुरू नहीं किया लेवल 1 से, लेकिन ये इतना कॉम्पिटेंट है कि अगर लेवल 3 में भी पार्टिसिपेट करेगा तो ये लेवल 3 कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि इसका जो हॉकी का नॉलेज है वो बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा है। तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप डायरेक्ट लेवल 3 के लिए चले जाएं और लेवल FIH के या एशियन हॉकी फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से लेवल 3 का कोर्स कर लें। लेकिन आप बिजनेस में होंगे, प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, आपकी परफॉर्मेंस सामने होगी, तो फिर ये सारे काम हो सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट लेवल्स आप कर सकते हैं, और इससे मैंने फिर जैसे कहा कि मुश्किल नहीं है। जो हॉकी खेल चुका हो, जिसको हॉकी की बेसिक्स का पता हो, और वो थोड़ी सी इंग्लिश जबान ना भी जानते हो आप, भले अपने मुल्क के लेवल तक अगर हम देखें और रीजनल लेवल तक देखें, तो आप अगर इन कोर्सेज में जाएंगे, आप ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को इतना क्वालिफाइड जरूर बना सकते हैं कि आप अपने मुल्क के लिए अपनी सर्विस दे सकें। तो दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन जब आप आए इस बिजनेस में, तो मेरा मशवरा सबको ये होगा, एज ए एजुकेटर, एज ए ट्रेनर को, फिर क्यों ना थोड़ा वक्त इंग्लिश सीखने पे भी लगाया जाए और अपने आप को दुनिया में मनवाया जाए। और जब मैं अपने आप को दुनिया में मनवाऊंगा, वो मेरा मनवाना नहीं होगा, वो हमारे मुल्क के नाम को हम लेकर साथ चलेंगे, एज ए एम्बेसडर होंगे अपने मुल्क के, और हमारे मुल्क का नाम होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का अगर हमने ग्रीन फ्लैग रेज करना है या इमेज बिल्ड अप करना है, तो ये जो स्पोर्टिंग स्टाफ होता है, मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी अहमियत रखता है। तो ताहिर भाई, थोड़ा सा जो स्पोर्टिंग स्टाफ है, लाइक हमारे साथ जो ट्रेनर्स होते हैं, फिजियोस होते हैं, समटाइम्स वीडियो एनालिस्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे क्वालिफाइड लोग नहीं हैं। तो क्या इनकी क्वालिफिकेशंस का भी हल्का हल्का हाईलाइट करेंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट है कोच एजुकेशन में, और अगर किसी टीम को अप टू इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना आजकल के दौर में, तो इनकी अहमियत पे भी थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो ये हमारे लिए बड़ा। जी शायद भाई, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसकी तरफ इशारा किया है। मैं कहूँगा दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द टीम। वो आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर हो, वो आपका टीम डॉक्टर या फिजियो हो, वो आपका वीडियो एनालिस्ट हो, वो आपका गोलकीपर कोच हो, ये ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब हर कोई जो है वो
कह लें कि हाई एनालिटिकल अप्रोच के साथ भी नहीं होता। मेरा जो ज्यादा ज़हन है या दिमाग है वो वीडियो गेम्स में है, स्मार्ट फोन में है, कंप्यूटर में है, लेकिन स्टिल मेरे पास हॉकी का नॉलेज है, तो मैं वीडियो एनालिस्ट में अपना भरपूर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ। इसी तरह मेरा ज्यादा जो अगर रुझान जो है वो फिजिकल कंडीशनिंग की तरफ है, फिजिकल ट्रेनिंग की तरफ है। मेरे पास हॉकी का नॉलेज भी है और मुझे ये पता हो कि हॉकी प्लेयर्स को किस किस्म की जो है फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है, कौन से रनिंग पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, कौन से मसल्स को हमने जो है वो डेवलप करना है और उनको शार्प करना है, तो आप उस तरफ भी आ सकते हैं। फिजिकल फिटनेस में या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में देखें तो वहां पे भी डिफरेंट लेवल्स हैं, 1 2 3 4 आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर बन सकते हैं। वीडियो एनालिस्ट में देखें तो स्पेशल कोर्सेज करवाए जाते हैं जो कि वीडियो एनालिस्ट के लिए ही होते हैं। उसमें भी आप अपने आप को एज ए कोच, FIH कोच, लेवल 1 2 3 4 5 6 जहां पे भी आप ले जाना चाहें, जब आप किसी भी लेवल को अचीव कर लेते हैं, लेवल 3 हो, लेवल 4 हो, आपके पास चॉइस होती है। एक अच्छा वीडियो एनालिस्ट जो है वो एक बहुत अच्छा कोच भी हो सकता है। और अगर मैं ये समझता हूं कि मेरी जो ज्यादा कह लें कि तवज्जो है या मेरी जो ज्यादा मुहारत है वो वीडियो एज ए वीडियो एनालिस्ट बेहतर है, तो मैं उसमें बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो एंड ऑफ द डे आपने कहा इनकी इंपॉर्टेंस, तो मैं कहूंगा दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जब तक एक अच्छे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस टीम नहीं होगी, हेड कोच, असिस्टेंट कोच, गोलकीपर्स ट्रेनर, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर, वीडियो एनालिस्ट, फिजियो, ऑल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट टीम आपके पास होगी, वो ही टीम जो है एक बेहतर खिलाड़ियों की टीम तैयार कर सकेगी। खाली एक अच्छा कोच होने से आप एक अच्छी बच्चों की टीम तैयार नहीं कर सकते। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा चार्म है सबके लिए। ये डिपेंड करता है, और यही नहीं, मैं ये कहूंगा टेक्निकल ऑफिशियल्स, अंपायर्स, ये भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप चाहें, अगर आपका उस तरफ ज्यादा ध्यान है तो आप उसमें भी ये डिफरेंट लेवल्स कर सकते हैं। एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल ऑफिशियल्स की एजुकेशन जो है हमारे मुल्क में इस चीज का फुकदान है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक जामिया किस्म की मनसूबाबंदी करनी चाहिए जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करे, उनको पाथवे दे इन सब टेक्निकल ऑफिशियल्स को, कोचेस को, वीडियो एनालिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जो भी आपने नाम लिए हैं और हमने नाम लिए, डिस्कस किए हैं, उन सब शोबों में ये सर्विसेज जो है उनको मुहैया करनी चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए। ताहिर भाई, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू और बड़ी डिटेल से आपने बताया। ताहिर भाई, एक और चीज गाइड करते जाएं जाते जाते कि पाकिस्तान हॉकी सिचुएशन इस वक्त जो है ना वो डबल ग्रुपिंग में हुई है। एंड आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में तो वर्स्ट तरीन देखी, और यकीनन आपकी लाइफ की भी ये वर्स्ट तरीन कंडीशन होगी जहां पोलिटिसाइज ज्यादा होगी हुई है हॉकी। तो क्या मशवरा देंगे दोनों ग्रुप्स को, और इस पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं खिलाड़ियों पे? देखें, खिलाड़ियों से भी थोड़ा आगे हमें जाने की जरूरत है शायद भाई। पहले तो ये कि मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह अजलान शाह जाने से पहले इसको मैनेज कर लिया somehow the others, और एक अच्छी बैलेंस टीम बनकर गई और वो परफॉर्म भी अच्छा करके आए। हॉकी की बात होने लगी, हॉकी में कमियां कहाँ हैं, कोताहियां कहाँ हैं, प्लेयर्स वेलफेयर के ऊपर कौन कौन से शोबे में ज्यादा काम करने की जरूरत है, उनकी डेली अलाउंसेस के मिसाल सारी तरफ सुनवाई हुई, उससे एक अच्छा फायदा हुआ। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसमें सारा इनिशिएटिव जो है ना वो गवर्नमेंट ने लेना है। उनको चाहिए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फाल बनाएं, और आई अज्यूम के ऑलरेडी जो अभी सेटअप है राना मुजाहिद साहब और तारिक बुक्टी साहब लेकर चल रहे हैं, हर जगह पे तो वही है। हर हमें जो हमारी जो एक्सेप्शन है वो यही है कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है और ये मामला को लेकर आगे चल रहे हैं। और दूसरे ग्रुप से भी मेरी दरखास्त ये होगी कि पहले भी वो ठीक थे फेडरेशन में, और अब अगर उनको मौका मिल रहा है या वो कर रहे हैं तो मेरी उनसे भी दरखास्त होगी कि इस चीज को इशू ना बनाए कि पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हो, इस काम को स्मूथली चलने दें। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये सिर्फ लोकल लेवल तक बात नहीं रहती, इंटरनेशनल लेवल तक जाती है। सो इन चीजों को जितना हम आपस में थोड़ा सा एक अखलाकी जुर्रत पैदा करने की जरूरत है, और खुद में मैं ये कहूँगा थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और बर्दाश्त लाने की जरूरत है।
कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, मामलात को बैठ के डिस्कस करें, डिस्कस करके उन चीजों का बेहतर वे आउट निकालें, लेकिन इसको एग्जैजुरेट ना करें, इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जाके बयानबाजियों से एक दूसरे को नीचा कर, ये जो सोच है ना, एक दूसरे को हम नीचा और गंदा करने की कोशिश करते हैं, ये बड़ी घटिया तरीन सोच है। इस सोच से हमें निकलना होगा और एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हर चीज में हम पहले देखें, मैं तो आज भी ये देखता हूँ कि ताहिर जमान को कोई ना पहचानता अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान हॉकी का नाम ना साथ लगा होता। तो मेरे लिए ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान हॉकी के लिए कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव अप्रोच के साथ कंट्रीब्यूट करूं, ना कि ऐसे इश्यूज में पड़ जाऊं जिसमें मेरा जाती मफाद हो, भले हमारी हॉकी की और पाकिस्तान की रुसवाई होती रहे दुनिया में। इस सोच को हमें बदलना होगा। ताहिर भाई, मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि आप बड़ा कंस्ट्रक्टिव वे से पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, क्यों नहीं आप एज ए कोच आ रहे? मेरी बात पहले हो चुकी, मेरा मतलब अजलान शाह से पहले मेरी फेडरेशन से बात हुई थी, राना मुजाहिद तारक गुप्ती साहब से। मैं उस वक्त इजिप्ट की नेशनल टीम का कोच था और मैं अवेलेबल नहीं था। मैंने उनको माजरत की, मैंने कहा मैं वहां से छोड़ के पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां से मैं उसको खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। अगर स्टिल पाकिस्तान को मेरी जरूरत हुई तो मेरी हमेशा से तरजीह रही है, और जबरदस्ती भी कोई नहीं है कि मैं जबरदस्ती पाकिस्तान का कोच बनना चाहता हूँ। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, आपके प्लेटफॉर्म्स के तवज्जुह से ही अगर जब ये ऑन एयर होता है या इसकी रिकॉर्डिंग चलती है हमारे प्रोग्राम की, प्रोफेशनल एथिक्स को लेकर चलें आगे, एडवर्टाइज करें जॉब को, सब एक्सपर्ट्स को मौका दें, वो आए अपनी प्रेजेंटेशन दें, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस शो करें, अपने टारगेट शेयर करें, अपने कंसर्न शेयर करें, वो बैठकर आपको बताएं ये अचीवेबल टारगेट्स हैं या नहीं हैं, और कब कैसे कहाँ क्या किया जा सकता है, इन सब चीजों के ऊपर बात हो। फिर एक कम्प्रिहेंसिव पीरियड दें। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि टाइम अब आ गया है कि हम अपने कोचेस को मौका दें, प्रोफेशनल और क्वालिफाइड कोचेस को। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपना कोच हो और दूसरा कोच नहीं होना चाहिए, भले वो जैसा भी हो उसको दें, नहीं। हमारे कोचेस जो हैं हाईली क्वालिफाइड हैं और प्रोफेशनल हैं, उनसे पूछें, जैसे मैंने कहा मीटिंग करके सारी चीजों को डिस्कस करें। जरूरी ये है कि उनको भी वो इज्जत दें, वो अथॉरिटी दें जो आप किसी बाहर वाले फॉरेन कोच को लाकर देते हैं, उनको भी वही फाइनेंशियल बूस्ट दें जो दूसरों को देते हैं। हाँ, उनको आंसरेबल भी बनाएं, उनको टारगेट जो आप उनके साथ शेयर करें जिसके ऊपर हमारा एमओयू साइन हो, उनके ऊपर उनको आप आंसरेबल भी बनाएं। हर महीने की रिपोर्ट लें, अगर आप चाहें तो हर हफ्ते की रिपोर्ट लें उनसे, प्रोफेशनल तरीके से काम करें। मुझे लगता है पाकिस्तानी जो क्वालिफाइड कोचेस हैं, हम लोग कोचेस हैं, मैं अपने आप को भी माइनस नहीं करता, मैं अपने आप को भी वहीं रख रहा हूँ, और मेरे बहुत सारे साथी जो प्रोफेशनल कोचेस हैं, अपने प्रोफेशनल कोचेस को मौका दें। बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे कोचेस का कि वो हमारे प्लेयर्स की साइकी को समझते हैं, वो हमारी कल्चरल वैल्यूज को समझते हैं, वो हमारी सोशल वैल्यूज को समझते हैं। स्लैंग लैंग्वेज का यूज होगा जिससे उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो प्रोग्रेस है इंप्रूव करने की, वो फास्टर ट्रैक के ऊपर होगी। अब उसके कंपैरिजन में आप कहते हैं बाहर वाला कोच लेकर आना है, फिर इंटरप्रेटर चाहिए, लैंग्वेज, सोशल वैल्यूज और कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज का उसे 100% उसको नहीं उसका अहाता कर सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज जो है वो कमजोर रह जाएगी। हाँ, पहले भी हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन कभी भी किसी फॉरेन कोच की तरह पाकिस्तानी कोचेस को ऐसे अथॉरिटी नहीं दी गई, ऐसे इज्जत नहीं दी गई, ऐसे फाइनेंशियली बूस्ट नहीं दिया गया। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी कोचेस जो हैं, वो जो क्वालिफाइड और प्रोफेशनल हैं, वो बेहतर तरीके से अपनी पाकिस्तान की हॉकी को सर्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए और पेशेंस चाहिए। वी हैव टू हैव अ बिग हार्ट शाहिद भाई, शॉर्टकट कोई नहीं है टुवर्ड सक्सेस, ठीक है। रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मैं समझता हूं कि अगर आप 16 से 10वें नंबर पे भी जाते हैं, 12वें पे भी जाते हैं, तो ये आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आप नीचे नहीं जा रहे। फिर वहां से आप जब 8वें नंबर पे भी जाते हैं या 6ठे पे भी जाते हैं, आप स्टिल इम्प्रूव कर रहे हैं, आप नंबर 1 भी हो जाएंगे। आप कहेंगे जी सिर्फ प्रोग्रेस या रिजल्ट्स जो है वो 16 से डायरेक्ट नंबर 1 होना है, तो खुदारा ये बहुत सालों से हम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। क्योंकि ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, दुनिया में कोई भी नहीं करता। बेल्जियम का फॉर्मूला ले लें हम, 12 साल का प्लान बना के वो यहाँ तक पहुंचे गए, फिर वो वर्ल्ड चैंपियन भी बन गए और ओलंपिक चैंपियन भी बन गए। 12 से 16 साल लगे उन्हें। प्लान की जरूरत है।
सो हमें भी टाइम लगेगा। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान प्लेयर माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं कि ये जो 16 साल का प्रोसेस है ये 3-4 साल में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू एक्चुअली। बड़ी जबरदस्त बात की आपने कि प्रोफेशनलिज्म जो है ना उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा और उस लेवल पे करना पड़ेगा जो इंटरनेशनल है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं अगर इंटरनेशनली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। ताहिर भाई, सही। खिलाड़ी आपस में बट रहे हैं, ग्रुपिंग हो रही है, ऑफिशियल्स, रेफरीज, इनको क्या हिदायत करेंगे? क्या आपके गोल्डन वर्ड्स होंगे इनके लिए? गोल्डन वर्ड्स वही हैं कि अखलाकी जुर्रत पैदा करें, स्पेस दें एक दूसरे को, सिर्फ जाती मफाद ना देखें। हो सकता है मेरे बहुत सारे दोस्तों में लगे पता नहीं मैं किस जमाने की बात कर रहा हूँ या मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बड़ी अच्छी सोच है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तजर्बे की बेस पे बात कर रहा हूँ। बहुत साल गुजार दिए हम सब ने हॉकी को इधर उधर करते हुए। देख लें एंड ऑफ द डे हम लोगों में से ही कुछ लोग गंदे हुए और कुछ को इज्जत मिली, लेकिन अब भी वो खिलाड़ी हो, वो ऑफिशियल्स हो, कोई भी हो, स्पेस दें एक दूसरे को और सबसे ऊपर पाकिस्तान का नाम रखें। मैं समझता हूं कि हम में बहुत टैलेंट है। पाकिस्तान हॉकी जो है वो दोबारा वहां पे आ सकती है जहां पे हर पाकिस्तानी उसको देखने की ख्वाहिश रखता है, इंशाल्लाह। थैंक यू ताहिर भाई, स्पोर्टफिट पाकिस्तान का सबसे पुराना यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स का, और हम लोग सब्सक्राइबर्स के बजाय हम लोग कंटेंट पे जाते हैं और चाहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट रहे जो लोगों को याद रह जाए। यही वजह है कि आप जैसे सीनियर और लेजेंडरी जो हमारे एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है लोग हैं, इनको हम लोग इन्वॉल्व करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दिया जा सके। ताहिर भाई, आपकी वसातत से मैं चाहूंगा कि आप एक मैसेज दीजिए कि हमारे इस स्पोर्ट्स के इस चैनल को अब सपोर्ट की जरूरत है ताकि हमारी कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, तो प्लीज। जी जरूर। पहले तो शायद भाई आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि आपसे, आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से अपनी आवाज को दूसरे दोस्तों और साथियों तक पहुंचा सकें। और मैं यही कहूंगा, जैसे आपने कहा कि कंस्ट्रक्टिव चीज जो है, कंटेंट के ऊपर आप लोग जाते हैं तो वो चीज जो दूसरों के लिए कोई एक छोटी मोटी भी गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके, वो मैं समझता हूँ कि कंट्रीब्यूशन होती है दूसरे के सीखने के अमल को आगे बढ़ाने के लिए। हमने जिंदगी में ऐसे ही सीखा है और हमारी कोशिश भी है, लोगों से दरखास्त भी है कि वो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और ताकि ये जो हमारी नेशनल गेम है हॉकी स्पोर्ट्स, जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनी है, इसकी पहचान को दोबारा से जिंदा करने के लिए और पहले से भी ज्यादा अरूज पे ले जाने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, जब ये बात से बात दूसरे लोगों तक पहुंचेगी, लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को देखेंगे, तो फिर ही बात आगे बढ़ सकेगी। तो सबसे दरखास्त है कि इस चैनल को आगे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और देखें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारी जो कौमी खेल की ज़ुबून हाली है उसको बेहतरी की तरफ कैसे ले जाना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।